This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on pillars of English language. Sir, I want to improve my English. What should I do first? I have a question to all of you. Raise your hand if you want to answer this question. So there will be a discipline in the class. Have you ever learned English before? आप टिक लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं. Have you learned English before? आपने पहले कभी English सीखी है? Have you ever, in your school life, in your college life, in your university life, uh, what do you think? How should we start learning a language? Raise your hand and answer me this question. Raise your hand, please. How should we start learning English? What should be the first step in your point of view? Yes, Khuba. Am I pronouncing your name correctly? Khuba, Khuba Mujahid. Unmute yourself. सर आई एम इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश. मुझे इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल, मतलब कि मैंने कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में बिल्कुल इंग्लिश नहीं सीखी. हर रोज से पास हो गई. कैसे पास हो इंग्लिश में? पर्रे चला दिए थे? जी थोड़ी बहुत हम लोग कर लेते थे, जितना टीचर हमें समझाते थे. तो अब आके इंटरेस्ट पड़ा हमारा इंग्लिश में. चले. तो इंग्लिश सीखनी चाहिए इंग्लिश. सर सैयद अहमद खान तो कह के पहले ही चले गए थे, पाकिस्तानियों मुसलमानों सीख लो. लेकिन नहीं, सर जी सैयद जी. अहमद खान की एक ना सुनी. Okay, yes, Faiza, what do you think? How can we learn English, Faiza? What do you think? What should be the first step? We should listen more and more to learn English and practice. Okay, Sapna, what do you say? How can we learn English? How should we start? अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam. Sure. I have a very deep connection with English as I'm a student of the BS English Language and Literature. And joining your platform is what I want fluency in my language. I think I don't have the fluency in my language. Or by practicing, if we listen more and practice more, then we have that. We can achieve that particular desire of the skillful and the perfect communication in English. Practice. Practice. Okay. Number one. Okay. Yes, Komal, what do you say? How should we start? Today is our very first day in language class. What do you think, Komal? What should be the first step of learning? Yes. Komal, unmute yourself. Zara. Okay, Komal, yes. Sorry. Sir, I think we learn listening and watching videos. I think so. Okay, thank you very I have much. no Yes. idea. Zara, what do you say, Zara? Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Am I audible? Yes, you are. As far as my concerns are, by listening, by watching, and by practicing, we can learn English easily. Okay. Yes, Hira, do you have anything in your mind different, Hira? In my opinion, we can improve English by focusing on our skills. Like if you more work on your listening power and speaking and practice, listen and read. I think a good listener is always a good speaker. So if you more work or focus on your listening, then you can start speaking, and then practice more focus, so you can start even you have such a confidence to speak
then this is a procedure for me. I think we can improve our English. This is the first step for me. Okay. Yeah. Yes, Ikra, what do you say? I think by listening more, we should increase our fluency in English. We should not only try to listen, but try to use these words in daily practice and try to involve ourselves in English conversation. And whenever we listen to a new word, we should write it down. Then we should repeat it, and after some times, we should try to recall these words. Otherwise, we forgot this word. That's very good. Samreen, what do you say? Very good, Ikra. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I can't speak English, but I will try. I think we learn English and practice and communicate to second person, then we speak English better. Okay, that's great. Yes, Aisha, what do you say? Aisha Kamar. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. I think reading and speaking with other person is necessary. But in fluency of English, I think we have a good grip on the tenses, vocabulary, and grammar. If our grammar and tenses are not so good, I think we can't understand English very well and can't speak it in fluent. That's my opinion. Okay. Yes, Rabia Khalid. Yes, sir. What do you think? How can we start learning English? What should be the first step of learning? Sir, I think my opinion, listen to English every day, listen to English radio, watch English TV, English movies. Okay. Yes, last but not least, Saika, what do you say? Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I think so by adopting 3 and 4 categories of English language like listening, speaking, reading, writing, you can improve your English language skills and you can be fluent. And the second thing is if you will feel like hesitation regarding speaking English, and definitely how you can speak the English language. If you have any difficulty regarding speaking, then it's okay. It's not your mother tongue. Don't feel hesitate, and you can speak with your siblings, friends, in your home, so you can easily be fluent in this language. And so this is the way to speak in English language. Like you can see the children in the school, when they are so new, they cannot speak even Urdu, but with the passage of time, when they listen to people, they're speaking in Urdu, then they can get the idea how to speak Urdu. So that's why I think so this is the better thing to listen the people and to practice this thing, and you can easily be fluent in this language. Okay, that's very good. Unzila. That's very good, Saika. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. There are many reasons to learn, but it is one of the most difficult language. It is important to focus on exactly and also reading and speaking to other people. Okay. अच्छा, जब बेटा आप बोला करें ना, कोशिश किया करें पीछे जो बैकग्राउंड की नॉइज हो ना वो आपके बोलने से कम हो, तो आपकी आवाज मुझे बिल्कुल समझ आएगी. यस, दिलजान. वेरी गुड नेम यू हैव. यस, दिल भी है, जान भी है. दैट्स वेरी गुड. Assalamu alaikum, sir. Who gave you this name, Diljan? Your mom or your father or your grandfather? Who gave you this name? My papa, sir. Okay, that's very good. Yes, how can we start learning? What should be the first step of learning English as a language? Sir, watch movies, listen to broadcast, or follow new channels.
To practice speaking with friends, join languages groups, or use language learning apps. Try to learn a few new words every day and use them in sentence. Okay, that's very good. You have Practice regularly and be patient with your progress. Mhm. Yes, Okay, sir. you are right up to some extent, actually. But when we join groups, I have seen so many people like they join so many groups on Facebook, they download different apps, they ask for free material, uh, they watch YouTube channels. But you need one thing. You the thing is that you need motivation first. The second thing, you need direction, and that must be a right direction of learning. When you download and watch all these things, you stop learning. The day comes, you have no motivation. You have um, directions. So these things are the resources, but these are not the way of learning English. Now you are stepping in. Today is your very first session with me. And if you are really looking forward to improving your spoken English, the first thing you must work on is sound. Because when you open your tongue, when you open your mouth, when you start speaking, when you break the ice, you will make so many errors in your pronunciation. So it's better to improve before. It's better to work on it, because you will not start speaking before 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks. You will take time. You may take 7 days, you may take 14 days, you may take 21 days, or you may take 28 days. In 28 days, you will start speaking for sure. मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर ऐड कर रहा हूं. If you don't start speaking by 4th of August, पूरा एक महीना मैं आपको दे रहा हूं. आज 4 जुलाई है, 7 जुलाई है. आज 7 जुलाई है, 7th of और 4 जुलाई है. What is the date today? What is the date? It's 4th of July. 4th July. 4th Of July. July. I am just on 1st August, you need to check. You need to counter check. Have you started speaking English? Have you got fluency? Your answer must be yes. Because what I believe, that if you spend 2, 3, 4 hours every day live on Zoom, you will definitely get fluency within a month, no matter what your qualifications are. But I am giving you some guidelines. I'm giving you a piece of advice you need to follow. You need to work on it. If you work every day, it's better to work every day instead of once in a week. Today, I gave you a task, you worked on it. I am going to give you this task for 10 days. 100 words you need to read. You need to read, and you need to check whether you can read fluently. 200 words, one audio. 300 words, 400 words. That time will come, you will say, Bas kar de, sir. But there should be no end. For 10 days, you need to practice reading and read aloud. But first, you must listen to the correct pronunciation. I also share the right pronunciation with you. I also share in native language, native speaker voice, I share that audio. Must listen to it. You are still making mistakes in your pronunciation. So first thing which we need to work on, sound. Improve your pronunciation first. Don't run after tenses. Don't run after model auxiliary verbs. People ask me to teach me advanced English. मैं कहता हूँ 3 बातें बता दें मुझे. Advanced English के 3 topics बता दें. What your target is? Your target is to speak in English. बस उसी spoken English को आपको बेहतर बनाना है with the passage of time.
यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। दूसरी चीज आ रही है, दूसरा पिलर आ रहा है जिसके बगैर आप लोग लैंग्वेज कभी सीख नहीं सकते, वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स किसे कहते हैं? अल्फाजों की तरतीब, वर्ड ऑर्डर। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लोग जो उर्दू बोलते हैं उसका मैच इंग्लिश से नहीं होता। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई इंग्लिश टीच। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अगर आपको उर्दू का वर्ड ऑर्डर बताऊं तो आप लोग शायद जो उर्दू पढ़ाते हैं वो जानते होंगे कि उर्दू में वर्ड ऑर्डर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, पता है आपको, और फिर वर्ब आता है। ये उर्दू का वर्ड ऑर्डर है। देख लें, आई मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये उर्दू का वर्ड ऑर्डर। मैं लिख भी देता हूं वरना कल को कोई उंगली उठा देगा हम पर। और इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर सब जानते हैं, क्या होता है? SVO, आई टीच इंग्लिश। अब यहीं से मसले शुरू होते हैं कि हमारे वर्ड ऑर्डर बहुत बिगड़े हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से सेंटेंस को किस तरह से जोड़ें। तो हमें दूसरा जो काम करना है वो वर्ड ऑर्डर पे करना है। हमें अपनी फॉर्मेशंस को इम्प्रूव करना है। अगर हम अपनी फॉर्मेशंस को इम्प्रूव करेंगे तो देन इंशाल्लाह यू विल गेट ग्रिप ऑन इट। अच्छा देखो, ये सब चीजें आपकी बेसिक्स में आती हैं। अगर तुमने एक दफा अपनी फाउंडेशन, एक दफा सिंटेक्स पे काम कर लिया तो जिंदगी भर का मसला हल हो जाएगा। आपको मैं एक बात और यकीन से बता दूं, एक और बात यकीन से बता दूं कि यू विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश वंस अगेन। आपको दोबारा इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज योर फाइनल राउंड। This is your final round. You will not Inshallah, you will not join any other English language institute or Inshallah, sir. because this is, I'm not praising myself, but in 20 years I have seen this thing. I have observed one thing: Inshallah, sir. students who have Inshallah. spent 6 months or 3 months, Inshallah, sir. they don't need any other thing, and you can't help leaving. Up, you can't help spending time on this platform. You can't help taking classes every day. आप रोजाना classes लिए बगैर रह नहीं पाएंगे। When you are Inshallah. right. So syntax is the second thing. तीसरी चीज क्या है जिससे आप लोगों को नफरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इससे प्यार हो जाएगा, और वो है ग्रामर। ग्रामर इज द another pillar of English language. अच्छा सर, आप ईमानदारी से बताएं, हम ग्रामर के अंदर किन किन चीजों को स्टडी करें तो हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा? सबसे पहली चीज है टेंसेस। यू मस्ट स्टडी टेंसेस। टेंसेस के बाद सर, टेंसेस के बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको हकीकत बताऊं, ये जो वर्ड स्ट्रक्चर्स का वर्ड है, ये मैंने लैंग्वेज क्लास में ही सुना था। मैंने कभी स्कूल में नहीं सुना इस तरह के जुमले, जैसे मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने पहली मर्तबा इसको लैंग्वेज क्लासरूम में सुना। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मैं क्लास फिजिकली पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच फिजिकली। मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये लैंग्वेज क्लासरूम्स में सुने। हमने तो सिर्फ टेंसेस पढ़े थे। मैंने जब लैंग्वेज को सीखना शुरू किया था तो मैं ताती ते का मानने वाला था। हम आप में से कितने लोग ताती ते के मानने वाले हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, लिए हैं, था थी थे, रहा था, रही थे, रहे थे, गागी गे। जब डॉक्टर आया तो मरीज मर चुका था। ये वाले कॉन्सेप्ट हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग थे। हम जिस दौर से पढ़ कर आए उसमें यही पढ़ाया जाता था। इफ्जाल अनवर मुफ्ती साहब की किताबें पढ़ते थे, उसमें भी यही उर्दू की पहचानें लिख कर दिया करते थे। लेकिन ये शायद हमारा स्टेप 1 तो हो सकता है, लेकिन इससे हम लैंग्वेज को बोल नहीं सकते।
वी कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग। फिर उसके बाद बेटा आपको मॉडल वर्ब्स पे काम करना होगा। मॉडल वर्ब्स हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है क्या है। हमने कभी मुझे तो शायद इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मे आई कम इन, MAY, ये मुझे लैंग्वेज क्लास में जाकर ही पता चला कि ये मे आई कम इन में मे की स्पेलिंग क्या है। शायद आप में, मैं बहुत सच बोलने का आदी हूँ, मुझे लैंग्वेज क्लासरूम ने ही बताया कि मॉडल वर्ब्स के अंदर ये जो मे होता है इसकी स्पेलिंग MAY होता है, मे आई कम इन। और हमने तो बस यही जुमला पढ़ा है, मॉडल वर्ब्स का यही इस्तेमाल था, वरना शायद साइंस की किताबों में पढ़ा था लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बस खत्म हो गई मॉडल वर्ब्स की नॉलेज। हमें किसी ने नहीं पढ़ाया शुड, मस्ट और टू, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, ये मॉडल वर्ब्स है। जब मॉडल वर्ब्स पता नहीं तो दूर, फिर मॉडल फ्रेज की तो बात ही ना करें ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता मॉडल फ्रेजेस। फिर जब आप यहां तक पहुंचते हैं तो बस मुबारक हो। ये 4 टॉपिक्स ग्रामर में पढ़ लो, चाहे आज तुम मेरी डेमो क्लास में हो, चाहे आज के दिन क्लास लो फिर कभी ना पढ़ो, लेकिन याद रखो कि ये 4 टॉपिक्स तुम्हारी बुनियादी नॉलेज है। और इसको पढ़ने के बाद फिर आपकी जिंदगी में बस एक चीज रह जाती है, और वो है कंडीशनल्स। मुबारक हो, स्पोकन इंग्लिश के सारे कंटेंट आपने कवर कर लिए। अब आपको शायद राइटिंग, अब आपके जहन में शायद एक सवाल हो, सर अगर ये तो हमने स्पीकिंग को फोकस कर लिया, सर अगर हम राइटिंग को थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करना चाहें तो हम क्या इम्प्रूव करें? राइटिंग के लिए आपको पैसिव वॉइस को स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज पैसिव वॉइस इज अ रिटन लैंग्वेज और मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स आर इन पैसिव। आपने पैसिव को इम्प्रूव कर लिया, आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, और जितना कुछ आप ये ग्रामर में पढ़ेंगे ये सब एक्टिव में होगा, और एक झटके में आप इसको पैसिव कर देंगे। तो राइटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, लेकिन राइटिंग के लिए मैं आपको अभी एक मैकेनिज्म बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन ये वो है टूल्स हैं आपके कि आपको ये आना चाहिए, पैसिव आना चाहिए। सर और कुछ, और अगर मैं कुछ कहूंगा राइटिंग के लिए तो फिर मैं आपसे वो राइटिंग के लिए भी कहूंगा कि आप आर्टिकल्स पे काम करेंगे, वो आपको मैं करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपको कुछ सपोर्टिंग लेक्चर्स दूंगा, प्रेपोजिशंस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और कभी ये नहीं कह सकते आई हैव डन, सर आई हैव लर्न आर्टिकल्स, सर आई हैव इम्प्रूव्ड प्रेपोजिशंस, सर आई हैव कंप्लीटेड कंजंक्शंस। ये 3 टॉपिक्स में आज आपका टीचर भी ये नहीं कहता आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। मैं आज भी आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस पर काम करता रहता हूँ। कोई नई वोकैबुलरी याद करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूं? बताइए, मैं क्या चेक करता हूँ? मैं चेक करता हूं कि इसके आगे पीछे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। अब बताओ चौथा पिलर कौन सा आ रहा है? साउंड हो गया, वर्ड, हमने फॉर्मेशन को सीख लिया, हमने ग्रामर को सीख लिया, अभी भी एक चीज बाकी है, vocabulary. एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर, वोकैबुलरी। अब आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो बेटा फिर तो पिक्चर चलेगी नहीं। वोकैबुलरी इज कंपल्सरी पार्ट। सर वोकैबुलरी में हम क्या क्या याद करें? मैंने आज आपसे एक वोकैबुलरी बुक शेयर की है। सबसे पहले तो कॉमन वोकैबुलरी पे काम करो। आपको पता है हमारे पास कॉमन वोकैबुलरी कितनी होती है? गर्मी में पढ़ाना भी एक फन है, मजा आता है, पसीना बहता रहे और पढ़ाते रहे। एक तो ये के इलेक्ट्रिक वालों, आज फिर बिजली के रेट बढ़ गए भाई, 7 रुपए। अभी 90,000 रुपए का बिल आया हुआ है इस महीने का, अब फिर बढ़ा दिए उन्होंने। वाह भाई वाह, इसका मतलब अगले महीने तो 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। कॉमन वोकैबुलरी पे काम करना है। कॉमन वोकैबुलरी कितनी है बेटा? कम से कम, कम से कम कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन वर्ड्स, जिस पे मैं कल बात करूंगा, कॉमन वर्ड्स
3000 है। पहले सबसे पहले एक हफ्ता दूंगा, एक हफ्ते में तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा, तुम इन 3000 वर्ड्स पे काम करोगे, ठीक है। फिर और कौन सी सर, फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव्स पे काम करेंगे। हम एडजेक्टिव्स का टारगेट सेट करेंगे, हमें एडजेक्टिव्स याद करने होंगे। फिर उसके बाद सर, फिर हम प्रेपोजिशंस पे फिर हम वर्ब्स पे काम करेंगे। वर्ब्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स। फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब्स पे काम करें। ये देखो, ये कभी सुना ही नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स भी कोई अंग्रेजी में चीज होती है। आप एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन 3 चीजों को सबसे पहले टारगेट करें। उसके बाद फिर आप जो है वो इडियम्स की तरफ जाएं, आप नाउन के ऊपर जाएं, एडवर्ब्स पे जाएं। लेकिन जब आप वर्ब याद कर लेंगे तो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, और वो कहलाती है वर्ड फॉर्मेशन। क्या कहलाती है बेटा? वर्ड फॉर्मेशन, जिसको दूसरे अल्फाजों में कहते हैं वर्ड बिल्डिंग। अगर तुम वर्ब याद ही कर रहे हो तो उस वर्ब से तुम नाउन कैसे क्रिएट कर सकते हो, उस वर्ब से तुम एडवर्ब कैसे क्रिएट करोगे? तो मैंने तुम्हें रूट याद करवा देनी है कि रूट पे काम करो, उसके बाद तुम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इतना बड़ा मसला नहीं रहता, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना, जो आइल्स के खास तौर पे जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, वो इस बात को याद रखें। इफ यू वांट टू गेट बेटर स्कोर इन आइल्स स्पीकिंग एंड आइल्स राइटिंग, you must use phrasal verbs in your writing, in your speaking. अब ये phrasal verbs क्या होते हैं, मैं इंशाल्लाह वोकैबुलरी के ऊपर एक एपिसोड रिकॉर्ड करवाऊंगा आप सबके साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि phrasal verbs क्या होते हैं। अब क्या रह गया बताओ? 5वां पिलर, भाई माशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन पे काम हो गया, वर्ड फॉर्मेशन पे काम हो गया, हमने वर्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर लिया, ग्रामर हमारी बेहतर हो गई, वोकैबुलरी याद हो गई। लेकिन हमारी अभी भी एक आदत नहीं है, हमने अभी तक अपनी एक आदत को क्रिएट नहीं किया। तो बताओ, कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, वो आदत कौन सी है? Practice. Sir, speaking. वो है आपकी Listening. Practice. Practice. Reading and listening. Practice. Sir, listening, practice, speaking. लिसनिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्पीकिंग की तरफ चले जाएंगे। सर मुझे तो राइटिंग करनी है, तो रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग ब्लेम करते हैं, हैंड रेस करके बेटा, हैंड रेस करके बीच में इंटरप्ट किया करें, और अपने बैकग्राउंड पे अगर आपने स्पीकर्स लगाए हुए या दूसरी डिवाइस से आप लॉगिन है तो उसकी ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर दें, वरना मुझे मेरी आवाज वापस आएगी। यस सायरा। सर, लिसनिंग, स्पीकिंग, और अगर हम लिसनिंग पे ज्यादा फोकस रखेंगे तो हम ज्यादा अच्छा मतलब सीख सकेंगे, और इसी तरह से हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी। जी ऐसा ही है। Sir? ये सारे मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है क्योंकि आपके पीछे जो ना दूसरी डिवाइस ऑन हुई हुई है। आपने 2 डिवाइसेस आपके पास है, या फिर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है कि मुझे अपनी आवाज दोबारा सुनाई दी जा रही है। यस सपना। Sir, is semantic is including in this pillar? हम अभी हम बीएस लिटरेचर लिंग्विस्टिक की स्टूडेंट मेरे पास बैठी है, Sir, meanings वो include होगी क्या नहीं? बिल्कुल। असल में जो जबान आपने यूज करी ना, वो हमारी लिंग्विस्टिक की जबान है, ये हमारी कौम अभी नहीं समझेगी ना। मैं प्रेगमेटिक्स और सेमेंटिक्स और स्टाइलिस्टिक्स की बात करना शुरू कर दूं तो ये भाग जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको सिंपल वर्ड्स में हम याद बता रहे हैं। अब ऑब्वियसली जब हम वोकैबुलरी की तरफ जाएंगे, जब हम वोकैबुलरी की तरफ सर इस जाएंगे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी मिल जाएगी बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। जब हम उस वोकैबुलरी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली सी हम उसकी मीनिंग्स के ऊपर तो काम करेंगे ना। विदाउट वर्किंग ऑन मीनिंग्स इट्स नो यूज, ठीक है। सो लिसनिंग, दीज आर द 6 पिलर्स ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आप इसमें से कोई सा भी एक स्किप कर दें, और आज तक जिस सर हम सिनोनिम्स भी लर्निंग करेंगे।
सिनोनिम्स, बेटा वो वोकैबुलरी, पहले तो सिंपल वोकैबुलरी पे तो काम कर रहे हैं, फिर सिनोनिम्स की तरफ जाएंगे ना। पहले तो हम अपनी 3000 वर्ड्स पे काम करेंगे, फिर कॉमन एडजेक्टिव्स पे काम करेंगे, कॉमन वर्ब्स पे काम करेंगे, कॉमन फ्रेजल वर्ब्स पे काम करेंगे, फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो बहुत आगे चलकर आते हैं, ठीक है ना। जी फिर सर। एक वर्ड तो याद हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल हमने याद कर लिया पास अवे, यानी मर जाना, अब हम उसका पास अवे भी याद कर रहे हैं, उसका किक द बकेट भी याद कर रहे हैं, डिमाइस भी याद कर रहे हैं, डाई भी याद कर रहे हैं। तो एक वर्ड तो पहले याद कर लें हम, हमारे पास एक वर्ड आ जाए वोकैबुलरी में। जब हमारी वोकैबुलरी की कुछ हम सोचते हैं कि यार नाउ आई हैव गुड इनफ वोकैबुलरी, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सिनोनिम्स, राइट। और आईएलटीएस के स्टूडेंट्स के लिए तो सिनोनिम्स जान है। Without knowing, having synonyms, you cannot. Sir, I am student. Sir, I Yeah, am student of IELTS. that's why I'm saying that IELTS students, they must have synonyms, but you cannot learn all these things in a day. Rome was not built in a day. चले आगे चलते हैं। अब आप कोई सा भी देखें, पिलर स्किप कर दे, और आज अब Yes, आप sir. अब आप Definitely. अब आपके जहन में मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, दिस इज द ओनली पिलर वी हैव बीन वर्किंग ऑन सिंस अवर स्कूल लाइफ। That's why we are, or we have been unable to speak in English since we wanted to speak. हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? आपको एक वजह नजर आ गई है कि हमने तो सिर्फ ग्रामर की सीढ़ी के ऊपर काम किया है। हमने वोकैबुलरी हमारी जीरो है, मान ले मेरी बात, वोकैबुलरी जीरो। रीडिंग, वी आर नॉट गुड रीडर्स। लिसनिंग, हमारी इन्वायरमेंट में कौन अंग्रेजी बोलता है भाई? आप पूरे दिन में कितना सुन लेते हैं? अभी ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में शायद जितनी अंग्रेजी आपने सुनी हो पिछले 3 साल में ना सुनी हो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इफ यू स्पेंड यस टाइम, सर, यस सर, बिल्कुल 100% आप ठीक कह रहे हो। तो हमारी, और वर्ड ऑर्डर हमारा, अब देखें सबसे वर्ड ऑर्डर तो हमारा है ही बिगड़ा हुआ। हमने साउंड्स पे कभी काम ही नहीं किया, हमें यही नहीं पता कि अंग्रेजी में कितनी साउंड्स हैं। आज शायद सर बताएं तो हमें पता चले, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमें तो कभी किसी ने साउंड्स तक नहीं पढ़ाई, बस हमें शुरू करवा देते। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। आपको प्रेजेंट सिंपल से जो लैंग्वेज क्लास स्टार्ट करवाते हैं ना, तो बस बेटा देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। अब आपको इस रोड मैप को फॉलो करना है। यू हैव टू वर्क फॉर short time on your pronunciation. You have to work for a while, for short time, for a few days on formation. You have to work for a long time on grammar. You always have to work on vocabulary. Listening is the key to keep on speaking. If you stop listening, you will stop speaking. Second language के बारे में गोरा क्या कहता है, रिसर्चर्स क्या कहते हैं? If you learn a language and you spend 6 months or a year and you start speaking it fluently like a native speaker, but for 10 years you are sent in a place where nobody speaks that second language which you have learned, you will forget it. You will forget it if you stop using listening to second language. So that's what I always tell my students. If you spend 3 months on this platform and you stop learning for 3 weeks after it, you will come to the same point. आप 3 महीने सीखें, और 3 महीने सीखने के बाद 3 हफ्ते आप बोलना छोड़ दें, सुनना छोड़ दें, आप वापस उसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो आप मुझसे एक वादा कर लें, वैसे तो वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन फिर भी बेटा एक वादा कीजिए, that you will never leave SKH. Once in a week, twice in a week, keep taking 1-to-1 discussion classes. आपके पास 1-to-1 discussion classes का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको ऑफ एंड ऑन क्लास हम इनवाइट करते रहते हैं कि आओ बोल लो इंग्लिश आकर। तो जब आपको वो मैसेज आए, मेरा ग्रुप, ये जिस ग्रुप में आप ऐड हो गए, ये अब रिमूव नहीं होगा। ये कम्युनिटी है, क्योंकि इसमें आपका नंबर शेयर नहीं होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इस कम्युनिटी को रिमूव नहीं करते। मेरे पास पिछले साल की, जब से व्हाट्सएप वालों ने कम्युनिटीज
इंट्रोड्यूस करवाई है उस वक्त से जितनी क्लासेस मेरी बनी हुई है सबकी कम्युनिटीज आज भी है मेरे पास. आई इनवाइट ऑल माय स्टूडेंट्स इन 1-to-1 डिस्कशन क्लास. ठीक है. सो लिसनिंग इज द की. अब आ जाइए लिसनिंग के आदाब. द वे वी लिसन एक्चुअली दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. वी लिसन, वी अंडरस्टैंड. हम कहते हैं हम सुनते हैं सर, और कुछ लोग कानों से, कुछ लोग आंखों से सुनते हैं. अभी जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा वी शुड वॉच मूवीज. इंग्लिश शुड बी लर्न बाय ईयर्स, नॉट विद आईज. राइट नाउ हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश? with your ears or with your eyes? So, With your ears. If I turn on my camera, you will stop learning English with your ears. You will start learning with your eyes. Eyes. Am I right or wrong? Yes, you are right. Sir, I agree. When you watch movies, you don't Sir, use your you're- ears. You Sir, don't I use, am right. you don't use your ears when you watch movies. You actually use your eyes. You just entertain yourself. You get pleasure when you watch movie. So I always advise my students to watch movies with ears. मूवी, कोई भी इंग्लिश फिल्म को देखें कानों से देखें. कानों से देखें सर, वो कैसे देख सकते हैं? मतलब कानों से सुने और आंखें बंद कर लीजिए. आपको एक मैं प्रीवियस मेथड ऑफ लर्निंग बताऊं. 2003 के अंदर हम स्टूडेंट्स कैसे सीखते थे. यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो उस वक्त हमारे टीचर्स हमें क्या एडवाइस करते थे? लिसन टू FM 89. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सुना है कभी FM 89? Yes, sir. इट इज इन इंग्लिश. Yes, sir. आपको अगर सुनना है तो लिसन टू FM 89. लेकिन वो पुराना हो गया, अब आपको मजा नहीं आएगा. आप चाहते हैं कोई खूबसूरत सा चेहरा सामने हो और हम उसको सुने, तो अब आपके पास यूट्यूब है. तो आप जाइए, मैं आपको कुछ राइटर्स के कुछ स्पीकर्स के नाम बता रहा हूँ. आप सुनिएगा और अपने पास नोट कीजिएगा. आप शीरी मजारी को सुन सकते हैं. शी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश. शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर. You can also watch or listen Alina Riaz. She is an Indian speaker. She smiles and she speaks good English. She does not make mistakes. Sandeep Maheshwari, he is also an Indian motivational speaker. There are many, but I used to watch or I used to listen these three people, and they really used to use very good vocabulary. Indian speakers are very good. So I have given you 3 names. You just start listening to them. But लेकिन 15 दिन भाई, हमारे पास जिंदगी में और भी काम है. We have to work a lot. अभी सर ने एक टास्क दे दिया है. वो टास्क क्या है? 15 दिन तक एक अच्छा लिसनर बनकर दिखाना है सर को. सर ने तो नहीं कहा कि बोलो डिस्कशन क्लास में, लेकिन बोलने का भी एक मैं आपको आज के सेशन में तरीका बता रहा हूं कि इस डिस्कशन क्लास के अंदर, स्पीकिंग और स्पोकन क्लास के अंदर आप बोल सकते हैं. 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते दे रहा हूं. लिसन टू 5 people in your class and take part after the 5th one. Listen to 10 people and take your turn. If you do like this, and if you share 2, 3, 4, 5 lines, you are rocking. If you are speaking for a minute, for 2 minutes between 20 people, you are building up your confidence. लोग कहते हैं 1 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, क्या बोला? हमने भी भाई 2 मिनट ही बोला था लैंग्वेज क्लास के अंदर. हमने कौन सा 30 मिनट बैठ के बोला था? I used to have 30 students in my spoken class. But that listening played a very important role, and that 2-minute presentation built up my confidence. That gave me a boost. और जो आपको एक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म चाहिए वो आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा. 1-to-1 डिस्कशन, जिसमें आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा. आप होंगी और आपके साथ एक पार्टिसिपेंट होगी. बोले जितना बोलना है, ठीक है? सो वो जो एक हमारा सेशन होता है ना 1-to-1 डिस्कशन, देयर यू गेट अ लॉट ऑफ चांस. तो ये मत सोचें कि क्लास में 10 स्टूडेंट है, 15 है, 20 है. आपने 1 मिनट बोला, इट मीन्स यू आर रॉकिंग, यू आर गोइंग ग्रेट गन्स.
क्योंकि आप ऐसे भी तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 1 मिनट भी नहीं बोल पा रहे, दे डू नॉट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, दे डू नॉट हैव दैट मच वोकैबुलरी, दे डू नॉट हैव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वो भी अब बोलेंगे। कैसे बोलेंगे सर, आज के सेशन में आपको गाइड कर देंगे। लिसनिंग के आदाब सुन ले। यस हुंजा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, sir. I want to, sir, can you write those name again or repeat them? आपने जो कहा था कि हम अभी उनको लिसन करेंगे। मैं आपको So, आपके व्हाट्सएप के ऊपर उनके yes, sir. यूट्यूब के लिंक्स के रेफर वो भेज दूंगा, लिंक्स उनके यूट्यूब के चैनल्स, तो आप जाकर सुन लीजिए, ठीक है ना, वो Thank you ज्यादा so आसान much. हो जाएगा। अच्छा भाई, अब लिसनिंग के आदाब देखिए। लिसनिंग के कुछ आदाब हैं जिसको हम हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और अगर आपने इस तरह से लिसनिंग करना शुरू कर दी, हम किसी को भी सुनते हैं, whenever we listen to someone we understand and we think, yes Samreen, do you want to add something? सर थोड़ी देर पहले मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं नहीं जानती वजह क्या है, पर मुझे आपका टॉपिक समझ नहीं आया। उसका आप समझा रहे थे ग्रामर के बाद राइटिंग का, उसके बाद मैंने नहीं देखा आप क्या समझा रहे थे, तो काइंडली यही प्लीज सेशन रिपीट कर आप, सकते ये रिपीट करूंगा तो मेरी क्लास 9:30 तक चली जाएगी। यही सेशन आपको मैं 11:30 पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहीं से सुन लीजिएगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाए जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। जी? लिसनिंग ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। लिसनिंग के आदाब, व्हेन वी लिसन वी अंडरस्टैंड। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टिक लगाइएगा, सर व्हेन वी लिसन वी अंडरस्टैंड, टिक लगाइएगा, सर व्हेन वी लिसन वी अंडरस्टैंड। आप में से अगर कोई ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं आता, मेरे पास कभी नहीं आया, सर what are you speaking sir, I don't understand what you are saying, because this is the language we have been listening since we started schooling. We have more than 5,000 words in our memory bank. आपको पता है आपके पास 5,000 वर्ड्स हैं, आपको नहीं पता आप कितने काबिल हैं। That's why you understand. Yes Rabia? Sir, your voice not clear. बेटा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है ना। I have been using this internet connection since morning. So when you listen, you understand. आज के बाद लिसनिंग के साथ साथ एक चीज और करनी है। लिसनिंग के साथ साथ क्या करना है, यू नीड टू टेक नोट्स। आपको अपने पास नोट्स लेने हैं। I have been speaking and I have been using different sentence structures. What you all have to do, that while listening, you you must write down vocabulary, sentence structures. And after that, you have to repeat them, you have to revise them. अगर आपके अंदर ये आदत आ गई that you are taking notes and you are repeating and you are revising, so you will be able to recall when you are speaking. एक प्रॉब्लम आपकी है, मेरा ये आदाब याद रखिएगा बेटा। लिसन, अंडरस्टैंड, टेक नोट्स, रिपीट, so that you can recall. If you are just listening, you understand. It's no use listening. फिर सुनने का अलीना को कोई फायदा नहीं है, संदीप महेश्वरी को सुने कोई फायदा नहीं है। अच्छा लगेगा, मुस्कुराएंगी आप, और एक बहुत अच्छी बात कर रहा है, तुमने उसकी बातों को सुनकर उसकी कोई वोकैबुलरी नोट करी, कोई उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में जाकर बैठा, या बस उसको देखकर खुश हो गए, उसके यूट्यूब के व्यूज बढ़ा दिए, उसे तो डॉलर्स मिल गए, तुम्हें क्या मिला? ना कोई वोकैबुलरी लिखी। अब उसकी वोकैबुलरी को नोट करो, उसके फिर उसको रिपीट करो ताकि तुम उस चीज को इस्तेमाल कर सको। Believe in me or not, sometimes I feel that my teacher is inside me, because I have stolen so many words from my teachers. I have stolen their way of speaking, their way of teaching. मैंने उनकी बहुत सारी चीजें चुराई हैं टीचर्स की, उनके मैं चीजें लिखता था, रिपीट करता था, अब मैं उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है मेरे अंदर मेरा टीचर है। ठीक है, गॉट इट? लिसनिंग इज द की, टेक नोट्स, रिपीट
and recall. एक बात मैं आखिरी लिखने जा रहा था. It has slipped from my memory. What was that? It was very important. So short memory. Okay. आगे चलते हैं. ये तावीज आपके साथ जाएगा आज. इस तावीज को अपने साथ बांध लीजिए, अपने हाथ पे बांध लोग हाथ पे बांधते हैं, आप इसको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लगा लीजिएगा. ठीक है, ये तावीज यहाँ पर आ रहे हैं. फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट. याद रखें, आपकी जिंदगी में सबसे पहली जो चीज आने वाली है ना, वो है फ्लुएंसी. मैंने आपको डेट बता दी है. ये बहुत बड़ी बात होती है कि सर ने एक डेट हमें दे दी है, और वो डेट है 4 अगस्त. पूरा महीना मुझे आप दे दीजिए. 4th of August you will start speaking fluent English. गलत होगी, लेकिन इंग्लिश में गलतियां अपनी जगह बरकरार रहेंगी. एक्यूरेसी के लिए हमारे पास फिर लेवल 2 आता है. लेवल 2 जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम आपकी एक्यूरेसी के ऊपर काम करते हैं. अभी जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल किया, एक मेरा बैच था, सर आप हमें लेवल 1 पर ही रखे हुए, लेवल 2 पे लेकर ही नहीं जा रहे. मैंने कहा कोई अंग्रेजी बोल ही नहीं रहा आपकी क्लास में. मुझे पता चल जाता है. टीचर से हम पूछ लेते हैं, डिस्कशन टीचर से, कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो व्हेन आई रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेवल 1 1 महीने के बजाय 1.5 महीने पे चला जाता है. लेकिन हम आपको कंटेंट पूरा करवाते हैं, क्योंकि देखो फ्लुएंसी आ गई ना, तो फिर एक्यूरेसी तो जिंदगी भर का काम है. जिस मकसद से आए हो वो मकसद तो मिल जाए पहले. Everybody wants to be fluent speaker here. Am I right? आप टिक लगा सकते हैं. Yes sir, you are absolutely right. Fluency comes first, then accuracy. अपना एक माइंडसेट, मेरी एक सोच है. देखो, जब इंसान की सोच अच्छी होती है ना, तो हर चीज उसको मिल जाती है. बी ऑप्टिमिस्टिक, रोशन पहलू रखें. कुछ लोग बड़े, मुझे अभी इस पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लोग बहुत सारे टकराए इस एक हफ्ते के अंदर. वो देखो, कभी जो ना, अगर सीखना चाहो ना, अगर सीखना चाहते हो, तो कभी अपनी जबान से ये नहीं कहना मुझे आता है. कराची और उसके मज़ाफ़ात में इशा की अजान का वक्त हुआ जाता है. कभी अपने आप से ये मत कहिएगा, और टीचर के सामने तो कभी मत कहना मुझे ये आता है. कभी ये मत कहिएगा. नेवर से. इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ आई नेवर सेड आई नो दिस. इवन आई न्यू एवरीथिंग, because when I joined MA English, I almost had very good knowledge. I had been a teacher for 10 years when I started MA English. But I never posed my knowledge on my teachers. I said, ma'am, I don't know anything. That's why I'm here. Please teach me. So आप लोग हमेशा अपने आप से ये, टीचर से ये कहा करें, I don't know anything. You tell us. So you will learn a lot. और हमेशा सोच को अच्छा रखें. I am sure I can do it. I am sure you can do it. Nothing is impossible. और 4 सेंटेंसेस का ये स्क्रीनशॉट लेके आज मोबाइल फोन पे लगा लीजिए. उठते बैठते मोबाइल आपके हाथ में होता है. अपने चेहरे से ज्यादा मोबाइल का चेहरा देखते हैं आप. I can speak in English. I am confident. I am getting better. I am the best. हर बच्चा ये आज से सोचना शुरू कर दे, I can speak in English. Never say I am not confident. अभी जैसे आज ये सेशन में एक लड़की ने कहा, सर I cannot speak in English. नेगेटिविटी को खत्म कर दें अपनी जिंदगी से. Always say I can speak in English. Never say I cannot. Sir, I don't have confidence. Never say like this. I don't have confidence. Say I am confident. से सर जी 1 महीना हो गया, हमारी तो इंग्लिश बेहतर ही नहीं हो रही. तो फिर मैं सवाल करूंगा, इतने सवाल करूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर के कौन से सवाल को सुने और किस सवाल का जवाब थे.
आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। मैं पहला सवाल करूंगा, जैसे आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको सबसे पहले आप ये बता दूं कि सिर्फ आपकी फ्लुएंसी स्पीकिंग में नहीं होती है, आपकी रीडिंग फ्लुएंसी भी होती है। मैं आज आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक टेक्स्ट भेजूंगा, आप उस टेक्स्ट को रीड कीजिएगा, 100 वर्ड्स होंगे। कल भी एक टेक्स्ट भेजूंगा, उसमें 200 वर्ड्स होंगे। आज तो मैं 3 टेक्स्ट भेजूंगा, कल से मैं एक ही भेजूंगा, उसमें 200 वर्ड्स होंगे। परसों भेजूंगा, उसमें 300 वर्ड्स होंगे। लेकिन बीच में सांस ना टूटे, सांस टूट जाए लेकिन ऑडियो ना टूटे, एक ही ऑडियो में रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू। मैं उसी वर्ड्स की एक ऑडियो भी भेजूंगा एक नेटिव स्पीकर की जबान में। So listen to it first, listen to it 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, then record your own audio. Then you will have a very good result, right? Always think that I am the best. I am the best. कभी ये ना सोचे आप किसी से कमतर हैं, मेरी क्वालिफिकेशंस कम है, मैं नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट वाज आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप एक अच्छे लैंग्वेज लर्नर हैं तो आप अपने नोट्स खुद क्रिएट करेंगे। मैं तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत सारी बातें लिखी भी होंगी, बट आपने देखा आज के सेशन में मैंने सुबह भी पढ़ाया, दोपहर में भी पढ़ाया, रात में भी पढ़ाया, लेकिन सारे सेशंस मुख्तलिफ थे, ठीक है ना। आपको एक वोकैबुलरी बुक भी मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन अब आप कहेंगे सर उस वोकैबुलरी बुक में उर्दू तो है नहीं। तो उर्दू नहीं है तो क्या हो गया, आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कीजिए। जब आप मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करते हैं तो आपके सामने एक आता है गूगल लेंस। अगर तो आपके मोबाइल में 3 कैमरे हैं, देखिए मैं ये तस्वीर खींच रहा हूं, ये तस्वीर मैंने खींची और इस तस्वीर को मैंने कहा उर्दू कर दीजिए, इसकी ट्रांसलेट। ऊपर लिखा हुआ है किस जबान में करना है, मैंने कहा उर्दू में कर दीजिए, और फिर मैंने देखे शेयर कर दी। अपना व्हाट्सएप पे जाइए अपने, देखें 5 4 3 2 1 0। चेक करें आपके पास जो व्हाट्सएप आया है और जो आपके पास ये स्क्रीन लगी हुई है, सर ने सारी चीजों की उर्दू कर दी है एक झटके में। अब आप किसी के मोहताज नहीं है कि सर इसकी उर्दू तो बता दें, आपने बस मोबाइल निकालना है और मोबाइल निकालकर एक तस्वीर खींचनी है, और वो सब कुछ जो इंग्लिश में लिखा है वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये नीचे एक लिंक भी मैंने आपको फॉरवर्ड किया, अगर आपके मोबाइल में 3 कैमरे नहीं है, दिल छोटा ना करें, आप इस लिंक पे चले जाइए, गूगल एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, गूगल लेंस। एक कैमरा भी है तो ये काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। मिस निशा ने आज आपको ज्वाइन किया है। आपकी डिस्कशन टीचर्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो आज मिस निशा आपके साथ है। आई एम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, girls. I hope you all are good today. वालेकुम सलाम Walaikum assalam, ma'am. How are you? Walaikum assalam, ma'am. Alaikum assalam, ma'am. Walaikum assalam. I hope you all are good today. We are going to have a new session today. So let me share the slide with you all. Okay, I'm just sharing the slide of today. That is, just give me a second. Oh, here it is. Okay, so try to maintain the discipline of the class. And you have, first of all, we have the common structure. We're going to discuss the common structure. Then we have the topic of the day and the phrasal verb of the day. So let's discuss the common structure of today. That is, it was Jack who broke the window when we were playing football. It is Jane that I want to marry. It was here in the supermarket that he met his first love. Okay, so the common structure is it was or it is. Like whenever we are going to point out at someone, जब हम किसी भी को बहुत prominently point out करते हैं, like if we have number of
boys and girls in the room,